Hello everyone, my name is Mitra and welcome to Siddha Banking Classes. So today we are here with another video on rearrangement of sentences. So let's get started. So in this video we'll be dealing with the definition of the sentence rearrangement and then some tips and tricks and how to solve sentence rearrangement in an easy manner and some examples. So let us know what sentence rearrangement is. So sentence rearrangement refers to rearranging a bunch of lines which are presented in a jumbled manner in the question. Candidates need to arrange their sentences in the correct order and then answer the questions related to the same. Matlab, we'll be given 5 to 6 sentences in a jumbled order. Let us say, Ram came home, he sat, he had his dinner, he went to sleep, he woke up in the morning. So इधर हमें 5 सेंटेंसेस है, ये ऑर्डर में है. मतलब पहले राम घर आया, वो बेटा, उसने खाना खाया, वो सोना चला गया, फिर वो फिर से कल सुबह उठा. So this is in an order, but in this rearrangement part it will be jumbled. मतलब पहले क्या दिया जाएगा कि वो खाना खा रहा है, फिर it will be like he came home, then it will be like he woke up, then it will be like he went to sleep. So आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर में नहीं है, तो इस सेंटेंसेस को हमें ऑर्डर में करना है. मतलब jumbled sentences are to be ordered. So order करेंगे, अगर हम jumbled sentence को order में रखेंगे तो वो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. मतलब हमें एक मीनिंग समझ में आएगा उस पैराग्राफ या उन सेंटेंसेस में से. एंड समटाइम्स हमें उस पैराग्राफ को रीअरेंज करने के बाद we'll be asked some questions in that. So when, let us say I have told that Ram went to sleep at 9 o'clock in the night. So it will be like, when did Ram go to sleep? अगर आप सेंटेंस को रीअरेंज करने के बाद देखेंगे, you can say it is as 9. Sometimes it will be like that same sentence will be divided as 2. It will be given as Ram went to sleep, he went to sleep at 9 o'clock. So अगर आप इसे अच्छे से रीअरेंज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 9 o'clock sleep पे गया या उठा. So you have to keep in mind. So ये होता है rearrangement of sentences. So how to analyze an answer? So पहले आप देखिए कि read all the given statements carefully and analyze the common point between them and then start rearranging them. So पहले हमें जो sentences दिए जाएंगे उसे अच्छे से हमें read करना है and then we have to analyze the common point between them. So अगर मैंने आपको एक example दिया है, Ram came home, he sat, he had his dinner, he went to sleep at 9 o'clock, he woke up early in the morning. So इस 5 sentences ये तो ordered है. अगर ये ordered नहीं है, ये jumbled है, आपको इसको read कर एक मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ओके यहाँ पर कुछ हो रहा है, राम तो घर आया है, like that you will be able to understand. आपको एक मीनिंग पहले समझना पड़ेगा. So read the given statements and then analyze the common point and then start rearranging them. Refer to a pattern that may be given in the statement. So एक pattern होगा, मतलब पहले I've told you like he came home, so it is the first point. Then he had his dinner, it's the second point. Then he went to sleep, third. He woke up. So अगर वो ordered भी नहीं है तो हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उधर क्या हो रहा है. सो वी आर नॉट सो डम कि हमें ये भी पता नहीं है कि वी आर जस्ट रीडिंग सम स्टफ. सो हमें पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं एंड वी इवन नो दैट इट्स नॉट एन ऑर्डर्ड क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल, यू हैव टू ऑर्डर इट. ट्राई रिलेटिंग द वर्ड्स गिवन like yet, but, when, then, they, anyway, etc. This will give you a clear idea how the sentence can be rearranged. So हम इन सारे वर्ड्स को एक ऑर्डर में हम रख सकते हैं कि yet, but जो होते हैं वो पहले सेंटेंस नहीं बनते. मतलब आप जो भी यूज़ कर रहे हो, अगर आप एक पैराग्राफ, जम्बल्ड पैराग्राफ को अच्छे से ऑर्डर में कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि बट या येट जो है वो पहला सेंटेंस नहीं होगा. सो हम सेम एग्जांपल लेते हैं. राम केम होम, राम हैड हिज डिनर, राम वेंट टू स्लीप, राम वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट ही डिडंट ब्रश हिज टीथ इमीडिएटली.
सो बट जो होता है वो पहले सेंटेंस नहीं होता, मतलब बट ही डिडंट ब्रश हिज टीथ इमीडिएटली, राम केम होम, ऐसा नहीं होता. सो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो पहले सेंटेंस नहीं होते, दे वॉन्ट बी द फर्स्ट सेंटेंस, वो कुछ बिटवीन या एंड में आ सकते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड. And next, candidates with stronger vocabulary are more likely to solve the questions quicker, as understanding the meanings of every word given in each sentence will help him arranging the statements. So अगर आप competitive exams के English section को crack करना चाहोगे तो first आप अपने vocabulary को enhance कीजिए. कुछ words जो होंगे आपको उसका meaning पता चलना चाहिए कि डिस्पेयर क्या होता है. डिस्पेयर जो होता है वो सैडनेस का मीनिंग देता है. सो अगर आप कुछ वर्ड्स को पढ़ोगे आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए. ये अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, यू कैन इवन फिल इन द ब्लैंक सेक्शन को भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो. फिल इन द ब्लैंक्स, पिलर्स, क्लोस्टर्स, ये सारे सेक्शन जो होते हैं उनको हम वर्ड्स के साथ फिल करेंगे. सो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, सो उन वर्ड्स के लिए हम अपने वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं. So if you increase or if you enhance your vocabulary, you'll be easily, you can crack the whole English section. सिर्फ ये rearrangement या error spotting नहीं, पूरे English section या fill in the blanks, close test, ये सारे आप easily crack कर सकते हो. So please, whenever you learn something in English, उन words के meanings अच्छे से समझ जाओ. And I seriously suggest that you have to read books. कुछ स्टोरी बुक्स या कुछ फॉरेन ऑथर्स के बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आप इजीली अपने वोकैबुलरी को एनहांस करोगे. एंड अगर आप चाहो तो आप शेक्सपियर के बुक्स भी पढ़ सकते हो. इन शेक्सपियर बुक्स यू विल हैव सो मच ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. ओल्ड इंग्लिश इतना होता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ में ही नहीं आएगा. सो आप उन वर्ड्स को नेचुरली गूगल करोगे एंड यू नो द मीनिंग. सो मीनिंग लर्न करते करते आप शेक्सपियर के वो बुक को जब कंप्लीट करोगे सो यू विल बी नोइंग लिटरली 100 वर्ड्स, 100 इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चलेगा व्हेन यू कंप्लीट वन शेक्सपियर बुक. सो आई सीरियसली सजेस्ट यू हैव टू रीड बुक्स टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी. सो अगर आप वोकैबुलरी इंक्रीज करोगे तो आप ये सारे पार्ट्स इजीली क्रैक कर सकते हो. सो बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं इंग्लिश सेक्शन एक एनहांसिंग पार्ट होता है. आई नो दैट मेन सेक्शन जो होता है, अगर आप बैंक एग्जाम्स लेते हो तो बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स का जो पेपर्स होता है वही तो मेन होता है. सो यू विल बी नेचुरली कॉन्सेंट्रेटिंग मोर इन दैट. बट अगर इंग्लिश सेक्शन क्रैक करना चाहोगे तो यू हैव टू लर्न एंड देन अगर आप ये वर्ड्स अच्छे से पढ़ोगे तो आप इजीली ये कोई भी पार्ट क्रैक्स कर सकते हो. एंड यू कैन इवन ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर्स. सो न्यूज़पेपर्स में भी अच्छे से वर्ड्स आते हैं. बिकॉज आई नो दिस एन एरा, डिजिटल एरा, हमारे पास न्यूज़पेपर्स नहीं होते हैं. वी जनरली रीड व्हाट इज अवेलेबल इन द वेबसाइट. हमें न्यूज़ जनरली हमारे मेल को आ जाता है एंड वी जस्ट रीड दैट. बट अगर आप देखोगे तो वो न्यूज़ जो होता है, वो इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं, इट्स वेरी सिंपल, इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड. सो हमें क्या करना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह को खरीद कर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यूज बुक्स, वो खरीद के उनमें से जो पैराग्राफ्स होते हैं आपको वो अच्छे से पढ़ना चाहिए. सो व्हाट विल हैपन, अगर आप पढ़ोगे तो यू विल इवन नो द करंट अफेयर्स पार्ट एंड यू कैन इवन एनहांस योर वोकैबुलरी. सो इट विल बी लाइक वन एरो टू शॉट्स. सो आप एक ही बार में दो थिंग्स आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. एक होता है करंट अफेयर्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन है, एंड दूसरा है इंग्लिश सेक्शन. सो आप दो थिंग्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. सो प्लीज improve your vocabulary and then you can easily crack all these. Perhaps paragraphs with one static statement are comparatively easier to crack as you get an idea on how the theme starts to evolve or how it shall end. So one static statement जो होता है वो ये कहता है कि वो सिंगल सेंटेंस पैराग्राफ्स. सो पहले हमें एक सिंगल सेंटेंस दिया जाएगा, वो 7 to 8 सिंगल सेंटेंसेस होते हैं. अगर आप वो इजीली जम्बल्ड होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हो. अगर वो एक स्टोरी टाइप है, मतलब लेट अस से हेयर एंड टॉर्टोइस का स्टोरी आपको जम्बल में दिया गया हुआ है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि स्टोरी में क्या हो रहा है. यू नो दैट हेयर तो पहले जीत नहीं सकता, उसको दौड़ना पड़ेगा. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके ये ऑर्डर्ड में नहीं है. सो पैराग्राफ्स विद स्टैटिक स्टेटमेंट्स ये कहता है कि स्टैटिक एंड डायनामिक जो होते हैं,
सो स्टैटिक स्टेटमेंट्स ये कहता है कि अगर आपका पैराग्राफ फ्लोई है या स्टैटिक है, मतलब सेटल्ड है, आप इजीली ये कह सकते हो, आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या है, ये इधर क्या हो रहा है, एंड यू कैन इजीली पुट द जम्बल सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. सो आप ये पॉइंट ये कह रहा है कि यू विल गेट द आइडिया ऑफ द होल थीम. सो ये इधर वो थीम क्या हो रहा है आपको इजीली पता चलेगा. मैंने ये राम का एग्जांपल दिया, वो ये क्या थीम इंसिस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि ये डेली कोर्स, उसका डेली कोर्स ये कह रहा है, ये वो थीम है उस पैराग्राफ का. सो जब भी आप पढ़ोगे, ट्राई एनालाइजिंग द थीम. Next, once you think you are done with arranging the statements correctly, reread the entire paragraph to ensure it's logically correct. So, जब पहले आपको ऐसे दिया जाएंगे, लेटर से ऐसे कुछ जम्बल्ड है, आपने सही से लगा दिया, ओके, ये ऑर्डर्ड है. समटाइम्स इसे आप पढ़ोगे तो इट शुड बी लॉजिकली करेक्ट. अगर ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, समटाइम्स यू मे राइट इट एज अपने, ये मिस्टेक जो होता है रीरीड करने से ही आपको पता चलता है, अदरवाइज यू कैन नॉट नो. ऑप्शन जो होते हैं वो सारे होते हैं, लाइक यू विल गेट कंफ्यूज्ड. सारे ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं बट यू शुड बी इन अ करेक्ट ऑर्डर ना. सो आपको ये जो होता है वो जम्बल्ड होता है, तो पहले 5th सेंटेंस आएगा, फिर 6th सेंटेंस, फिर 3rd सेंटेंस, फिर 2nd सेंटेंस. सो आपको अच्छे से पहले पेंसिल में या कुछ रफ कॉलम में आप लिखो, फिर पढ़ो, फिर रीड करते आपको इजीली, अगर वो लॉजिकल है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, देन यू कैन टिक इट इन द ऑप्शन. सो हम थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं. सो पहले, try to find out the topic addressed by the paragraph. This can be done by looking for the words that are repeated often in the given sentences. So topic addressed by the paragraph का मतलब ये है कि मैंने बोला था आपको थीम, उस पैराग्राफ का थीम क्या है, एंड दिस कैन बी डन बाय लुकिंग फॉर द वर्ड्स दैट आर रिपीटेड. सो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं. अगर हेयर एंड टॉर्टोइस का स्टोरी लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो एक रेस है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट theme of the paragraph is something they are racing, they are winning, they are losing, वो होता है. So आपको एक पैराग्राफ पढ़ते ही you know the theme. अगर वो थीम पता चल गया तो आप इजीली अरेंज कर पाओगे. So look for the words that are repeated often. समटाइम्स ये राम जो होता है, मैंने ही कहा, मतलब राम का कुछ कह रहे हैं इधर. सो राम केम होम, ही हैड हिज डिनर, ही वेंट टू स्लीप, ही वोक अप इन द मॉर्निंग बट ही डिडंट ब्रश हिज टीथ. सो ये सारे पॉइंट्स किसके तरफ इशारे कर रहे हैं? राम के तरफ. सो वी आर सेइंग दैट दिस इज द डेली कोर्स. राम का डेली कोर्स है के बारे में हम बोल रहे हैं. सो यू हैव नोन द थीम. Next, if a particular word is repeated more than one sentence, then the sentence can be placed one by one in the paragraph. So, अगर आप कहते हैं कि मैंने pronouns use नहीं किया, I have alternatively used the pronouns. So, if I have used a particular word and it's been repeating so much times in the paragraph, you can put it in an order. So, अगर पहला Ram came home, Ram had his dinner, next sentence है, पर मैंने उसको, अगर फर्स्ट सेंटेंस राम केम होम है, मैंने राम हैड हिज डिनर को 7th सेंटेंस या 8th सेंटेंस में पता है, आप कैन इजीली यू कैन पुट इट अंडर द फर्स्ट सेंटेंस राम केम होम. इस पॉइंट का मतलब है कि अगर रिपीटेड वर्ड्स हैं तो यू कैन पुट इट इन एन ऑर्डर, दे कम वन बाय वन. वो वन बाय वन सही है ये आपको देखना है. सो सारे में रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, पढ़कर देखो कि कौन सा वाला फर्स्ट आता है, कौन सा वाला सेकेंड आता है. If a sentence starts with the name of a person, then the sentence will definitely be the first sentence in the paragraph formed. So मैंने बोला था कि अगर हम प्रोनाउंस, सारे प्रोनाउंस यूज कर एक ही नाम यूज करेंगे, लेट अस से राम केम होम, राम हैड हिज डिनर के बदले राम केम होम, ही हैड हिज डिनर, ही वेंट टू स्लीप, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डिडंट ब्रश हिज टीथ. सो अगर ये देख सकते हैं कि मैंने राम जो है एक ही बार इस्तेमाल किया है, और मैंने आपको ऑर्डर में बोला है, पर ये जम्बल्ड होता है ना. फिर आप ये राम का सेंटेंस जो है वो 8th सेंटेंस में दिया गया है, आप इजीली ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट सेंटेंस है. So if it is given a name, it will obviously be the first sentence of the paragraph. If a sentence starts with a pronoun other than I and you, then the sentence will not be the first of the paragraph.
सो मैंने बोला राम को हमने यूज किया तो राम ही फर्स्ट होगा, उसके बाद जो भी प्रोनाउन होगा वो तो उसके बाद वाला ही आएगा. एंड इफ आई हैव रिटन आई एंड यू, आई का मतलब होता है मैंने, सो फर्स्ट पर्सन नरेटिव होगा, वो पैराग्राफ जो होगा वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव हो सकता है. राम के बदले यू कैन से आई केम होम, आई हैड माई डिनर, आई वेंट टू स्लीप, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो आई वाला सेंटेंस फर्स्ट आ सकता है. एंड यू केम होम, यू हैड योर डिनर, यू वेंट टू स्लीप, सो यू वाला सेंटेंस भी फर्स्ट आ सकता है. सो हम ये कह सकते आई यू इन दो प्रोनाउंस के बदले, और जो भी कोई प्रोनाउन है ही शी हिम दे देयर, वो सारे फर्स्ट सेंटेंस कभी भी नहीं आएंगे. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस इन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में आपको क्या समझ में आ रहा है? एक नेम, आई एंड यू ही फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं. The sentences starting with the words that's, these, thus and those, then those sentences will not come in first in the paragraph. So that these, thus या those होगा तो वो फर्स्ट नहीं आएगा, नेचुरली नहीं आएगा. क्योंकि अगर आप एक थियरम या कुछ प्रूव कर रहे हो, उसके बाद वाला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस क्या होगा? thus the theorem is proved. So thus वाला सेंटेंस या those, that's वाला सेंटेंसेस, ये सारे लास्ट आ सकते, आने के चांसेस ज्यादा हैं. सो thus, hence, however, ये सारे सेंटेंसेस लास्ट आ सकते हैं. ये those that and these जो होते हैं वो मिडिल में आएंगे. सो आप कुछ पॉइंट्स जो होते हैं आप इजीली इसे मेमोराइज कर सकते हो, सो दैट व्हेन यू रीड यू विल गेट एन आइडिया. नेक्स्ट, if an article named A and the is present in the starting of a sentence, then the chance of the sentence to be first in the arrangement is more. So इधर हम ये कह रहे हैं कि A and the है. So ये जो words होते हैं ये first आने के chances हैं. हाँ, अगर मैंने राम के बदले an apple, a orange या the tree यूज किया है, we can say that those words can be the first. So an apple a day, अगर हम एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कह रहे हैं, जैसे an apple comes from an orchard and it is washed, it is dried, it is waxed, it is packed and it's sent to manufacturing. अगर मैंने कुछ ऐसा एक सीक्वेंस कुछ लिखा है, so an apple वाला ही फर्स्ट आता है. and the, so the का pronunciation I wanted to tell you that टू होते हैं. अगर हम the एक consonant के पहले यूज करेंगे तो वो the होगा. अगर एक vowel के बाद, let us say apple के पहले I'm using it, so it will be the, you should say the apple, the helicopter, the apple, the aeroplane. So आप pronunciation को भी ध्यान में रखो. This is just an extra point. Okay, and then if all the articles are present at the starting words of different sentences, then they are arranged as follows. The sentence starting with A comes first. The sentence starting with an and the will follow the sentence starting with A according to their content. So पहले अगर सारे सेंटेंस में a and the हैं तो आप क्या करोगे? जो सेंटेंस अ या ए से शुरू होता है उस सेंटेंस को आप पहले सेंटेंस बनाओगे. इफ नेम वाला सेंटेंस नहीं है, आई वाला सेंटेंस नहीं है, यू वाला सेंटेंस नहीं है, ए एंड द बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, सो इट विल बी इन एन ऑर्डर लाइक अ या ए वाला सेंटेंस फर्स्ट आएगा, उसके बाद एन वाला सेंटेंस और उसके बाद द वाला सेंटेंस. और एन वाला सेंटेंस और द वाला सेंटेंस आप एक बार रीड करके लॉजिकली करेक्ट है या देख कर आप अलोकेट कर सकते हो. If the given set of sentences consists of simple, compound and complex sentences, then they are arranged in the following order. So अगर simple, compound या complex sentences है तो ये कौन से order में arrange होंगे ये हम बात करने वाले हैं. So पहले let us see the definition of a simple sentence, compound and complex sentence. And कौन से order में arrange होंगे ये भी देखेंगे. So कौन से order में arrange होंगे? पहला वाला जो है वो simple आएगा, ओके, एंड उसका बाद वाला जो है दूसरा वाला कॉम्पाउंड आएगा एंड तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स. सो ये तीन ये में ही अरेंज होगा. पहले वाला सिंपल सेंटेंस आएगा, दूसरा वाला कॉम्पाउंड सेंटेंस आएगा एंड तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा.
फर्स्ट वो सिंपल सेंटेंस का मतलब जानते हैं. अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिक एलिमेंट लाइक अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड अ कंप्लीटेड थॉट इज अ सिंपल सेंटेंस. सो पहले सब्जेक्ट वर्ब जाने से पहले आई लाइक टू टेल यू दैट एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. उनके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनते. सो एक सेंटेंस को अगर हम पार्ट्स में करके उसका ग्रामेटिकल मीनिंग को बाहर निकालते हैं, लेट अस से सेंटेंस पैटर्न, उसको उससे हमें ये पता चलता है कि वो सिंपल है या कॉम्पाउंड है या कॉम्प्लेक्स है. लेट अस से अरुण वेटेड फॉर द बस. ये एग्जांपल देखिए. अरुण है, अरुण जो होता है वो सब्जेक्ट है, वेटेड जो होता है वर्ब है, फॉर द बस जो है वो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मतलब हम एक ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं. सो पहले एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ए का मतलब होता है एडजेंक्ट, आईओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो सिर्फ ये ही सेंटेंस पैटर्न के लिए यूज कर सकते हैं. सो सब्जेक्ट होता है वो मेन थिंग होता है एक सेंटेंस में. वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट का काम बताता है. ऑब्जेक्ट तो होता है बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है. एडजंक्ट जो होता है वो टाइम एंड प्लेस कहता है, टाइम प्लेस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. लेट अस से अरुण वेटेड फॉर द बस. सो अरुण वेटेड फॉर द बस में आप देख सकते हो कि आईओ जो होता है, आईओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डीओ होता है. सो सिर्फ ये सारे वर्ड्स फॉर्म द सेंटेंस पैटर्न. सो अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है और सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब है पर वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या कंप्लीट थॉट है, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है. लेट अस से the bird flies. The bird flies. So the bird flies. So अब इधर आप ये देख सकते हो कि the bird जो है सब्जेक्ट है, फ्लाइज जो है वर्ब है. ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि ये कह रहा है कि बर्ड जो है वो उड़ रहा है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट या एडजेक्ट नहीं चाहिए. सो अगर ऐसे है एक सेंटेंस तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है. सो नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस. A sentence that consists of two independent clauses connected to one another with a conjunction is a compound sentence. Arun waited for the bus, but the bus was late. So compound sentence के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ. इसका टिप का नाम है फैन बॉयस. ओके, सो फैन बॉयस के जाने से पहले एक कॉम्पाउंड सेंटेंस जो है वो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करता है, मतलब कनेक्ट करता है, कंबाइन नहीं सॉरी कनेक्ट करता है. लेट अस से अरुण वेटेड फॉर द बस बट द बस वाज लेट. सो अरुण जो है दो इंसिडेंट्स हमें इधर पता चलता है कि अरुण वेट कर रहा था पर बस नहीं आया या बस लेट था. सो टू इंसिडेंट्स आर टोल्ड हियर एंड दीज टू आर क्लॉसेस. सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को कनेक्ट करने वाला या लिंक करने वाला एक कंजक्शन होता है. उस कंजक्शन से बना हुआ सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. और आते हैं फैन बॉयज को. सो फैन बॉयज, एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब है येट, एस का मतलब है सो. अगर ये 7 लेटर्स कोई भी सेंटेंस के बिटवीन आता है तो वो कॉम्पाउंड सेंटेंस ही होता है. ओके, सो इधर आप देख सकते हो कि इधर बट आया है, कॉम्पाउंड है, फॉर आया है, कॉम्पाउंड है, एंड या नॉर या और या येट या सो कोई भी आया होगा ये कॉम्पाउंड सेंटेंस ही होगा. In next, complex sentence. A sentence that consists of an independent clause or one or more dependent clauses connect to it. Arun realized that the bus was late while he waited at the bus stop. So while he waited at the bus, Arun realized that the bus was late.
सो आप कॉम्पाउंड सेंटेंस को आप समझ सकते हैं कि जो इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को कनेक्ट करता है, इधर एक इंडिपेंडेंस या दो या तीन डिपेंडेंट क्लॉसेस हैं. सो एक इंडिपेंडेंट 1 to 2 और 3 या बहुत सारे डिपेंडेंट क्लॉसेस हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है. कि आपको वर्ड पढ़ते ही समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स ही है. सो इट्स कॉम्प्लेक्स. आपको पढ़ते ही जैसे पता चलेगा कि ये बहुत वर्ड्स एंड बहुत सारे ग्रामर और बहुत सारा इंसिडेंट्स सारे मिक्स करके एक सेंटेंस, बड़ा वाला सेंटेंस दिया जाएगा. तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है. While he waited at the bus stop, Arun realized that the bus was late. इसे इतने बड़ा सेंटेंस कहने के बदले you can say Arun was waiting and he realized the bus was late. और Arun was waiting and the bus was late. Arun waited for the late bus. आप ऐसे भी कह सकते हो, सिंपल. बट आप इतने बड़ा सेंटेंस को इतने सारे व्हाट से एक कॉमा और एक वाइल और बहुत सारे वर्ड्स यूज करके एक सेंटेंस बना रहे हो, ये सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है. सो अगर आपको सेंटेंस पढ़ते ही आपको कष्ट या कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है. सो सिंपल सेंटेंस जो वो सिंपल है. कॉम्पाउंड सेंटेंस है अगर दो सेंटेंस के बिटवीन फैन बॉयज आते हैं तो वो कॉम्पाउंड है. ये दोनों के बदले जो भी सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स होगा. पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. सो होप आपको ये एक सिंपल कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट इजी समझ में आया है. तो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया, 8th पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि अगर आपका जम्बल सेंटेंसेस में सिंपल कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं तो इट विल बी पहले सिंपल आएगा, फिर कॉम्पाउंड आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स आएगा. सो एग्जाम्पल given below a jumble sentence, arrange the following in logical form. Rani fills the form to the dance show. A talent and show is looking for classical dancers like Rani. Rani is called for auditions. Rani is a trained Bharatanatyam dancer. Rani gets selected. So अगर इधर आप देख सकते हो कि बहुत सारे रानी आए हैं, तो what इधर पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट अप्लाई करके देखते हैं. पहले हमें ये क्या पता चलता है कि ये पैराग्राफ जो है ये रानी के बारे में है. और क्या पता चलता है कि एक डांस शो के बारे में है. और क्या पता चल रहा है, रानी एक क्लासिकल डांसर है. और क्या पता चलता है, रानी एक भरतनाट्यम डांसर है. और रानी ऑडिशन को जाती है. और क्या पता चलता है कि रानी सेलेक्ट हो गई. मतलब हमें ये पता चलता है कि रानी एक लड़की है, वो एक क्लासिकल डांसर है, वो एक भरतनाट्यम डांसर है, वो कुछ ऑडिशन को गई थी, एक डांस शो का ऑडिशन को गई थी और वो सेलेक्ट हो गई. तो आपको बेसिक आइडिया इधर समझ में आ गया. सो इट इज़ वेरी इजी. उसके बाद कोई भी पॉइंट आपको इजीली पता चलता है कि पहले क्या आएगा. रानी इज अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर. A talent hunt show is looking for classical dancers like Rani. So Rani is a trained Bharatanatyam dancer. हमारा फर्स्ट. A talent show is looking for classical dancers like Rani जो है ये सेकेंड है. Rani fills the form to the dance show ये थर्ड है. Rani is called for auditions है ये 4 है. और रानी गेट सेलेक्टेड ये 5 है. सो पहले रानी इज अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर. टैलेंट शो इज लुकिंग फॉर क्लासिकल डांसर्स लाइक रानी. रानी फिल्स द फॉर्म टू द डांस शो. रानी इज कॉल्ड फॉर ऑडिशंस. रानी गेट सेलेक्टेड. सो आप ऐसे आंसर नहीं लिखोगे, आपको एक कोड या व्हाट टू से नंबर्स में आपको ऑप्शंस में लाइक 5342 5792 लाइक ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से टिक करना है. सो पहले इधर कितना सेंटेंस है, इधर 5 सेंटेंस है. और ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर जम्बल्ड है. सो करेक्ट ऑर्डर में क्या है, कैसे लिखेंगे. सो पहले वाला सेंटेंस क्या है, फोर्थ सेंटेंस जो है वो पहला आएगा. नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस आएगा. नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस and fifth sentence. So 4 2 1 3 5 is the answer. So options में से आपको 4 2 1 3 5 टिक करना है. और नेक्स्ट पार्ट जो है इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इधर what is the correct of the statements when arranged logically. क्या है, 4 2 1 3 5 है. Which statement is the third statement from the beginning. So बिगिनिंग में से थर्ड सेंटेंस क्या है, 4 2 1.
फर्स्ट वाला, सो रानी फिल्स द फॉर्म टू द डांस शो. So Rani fills the form to the dance show. So questions of similar type are asked in the final examination, but a little complex manner. ये जो है वो सिंपल है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, पर इससे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, मतलब थोड़े डिफरेंट या थोड़े मोस्टली आपका जनरल सेंटेंस कैसा होगा, वो करंट अफेयर्स टॉपिक में से होगा. जैसे कुछ बिल पास किया हुआ है, उन बिल के रिलेटेड कुछ 7 to 8 सेंटेंसेस होंगे. उस सेंटेंसेस में सो एग्जाम्स में जो सेंटेंस है वो और कॉम्प्लेक्स होंगे या और थोड़ा डिफिकल्ट होगा. आपको ये सारे टिप्स यूज करके उस रीअरेंजमेंट पार्ट को क्रैक करना है. सो थैंक यू वेरी मच. आप मुझे लगता है कि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं. एंड प्लीज़ follow us on Facebook and join our group in Telegram. And please check in our website www.siddhaclasses.com. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड हमने बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए हैं. सो प्लीज़ बुक देम इन द वेबसाइट. एंड आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. वील रिप्लाई यू. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर and comment this video, and don't forget to subscribe Siddha Classes. Thank you. Keep watching, keep learning.